چھوٹی چڑیا کے بیٹے کوکو کی ایک عادت بہت بری تھی کہ اسے اپنی مما کا لایا ہوا بھوجن پسند نہ آتا تھا۔ وہ ہمیشہ بھوجن میں نقص نکالتا تھا۔ آج یہ نہیں لائی، مما آج دانا کیوں لائی؟ مما آج آپ پھل کیوں نہیں لے کر آئی؟ یہ پھل کھٹا ہے، یہ پھل میٹھا ہے۔ وہ ایسے ہر سمے اپنی مما کو تنگ کرتا تھا۔ صبح سے گئی ہوئی مما چڑیا شام کو لوٹتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے چنے کا دانہ لے کر آئی تھی۔ لو میرے بیٹے، آج میں اپنے کوکو کے لیے چنے کا دانہ لائی ہوں۔ چنے کا دانہ؟ آپ صبح سے گئی ہوئی ہیں اور شام کو لائی بھی تو ایک چنے کا دانہ۔ بھلا یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میں نہیں کھاؤں گا چنے کا دانہ۔ بیٹا، ان دنوں جنگل میں بھوجن کی بہت کمی ہے، میں یہ چنے کا دانہ بھی بہت مشکل سے لائی ہوں۔ تو پھر آپ بھی کھا لیں یہ چنے کا دانہ۔ کوکو اپنی مما سے ناراض ہو کر سو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی مما کو دانہ لانے کے لیے کتنے دکھ اٹھانا پڑتے ہیں، کتنے خطروں کو مول لینا پڑتا ہے۔ وہ تو بس اپنی مما سے ناراض ہونا ہی جانتا تھا۔ دوسرے دن کوکو کی مما دور تک جاتی ہے۔ آج وہ اپنے بیٹے کے لیے پھل لانا چاہتی تھی۔ ایپل کا پیڑ تو خالی تھا، اس پیڑ پر سے تو پتے بھی گر چکے تھے۔ ایپل کے پیڑ پر تو ایپل نہیں ہے، اب مجھے اور آگے جانا ہوگا، مگر جو بھی ہو میں آج اپنے بیٹے کے لیے پھل لے کر ہی جاؤں گی۔ یہ سوچ کر مما چڑیا گھنے جنگل میں جاتی ہے۔ وہاں ایک انار کے پیڑ سے مما چڑیا کو ایک انار مل جاتا ہے۔ مما چڑیا بہت خوش ہوتی ہے اور وہ انار لے کر گھر لوٹتی ہے۔ دیکھو تو آج میں اپنے بیٹے کے لیے کیا لائی ہوں۔ یہ تو انار ہے، مگر مجھے ایپل کھانا تھا، آپ انار کیوں لائی ہیں؟ بیٹا، میں گئی تھی ایپل کے پیڑ سے ایپل لینے، مگر وہاں ایپل تھا ہی نہیں۔ پھر کوکو کی مما کوکو کو انار کھول کر دیتی ہے۔ کوکو ایک دانہ انار کا ہی کھا کر رک جاتا ہے۔ یہ بہت کھٹا ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ کوکو بیٹا، آپ کیوں اپنی مما کو اتنا تنگ کرتے ہو؟ نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، یہ انار میں نہیں کھاؤں گا۔ اب تو مما چڑیا بہت تنگ آ گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سیکھ دینا چاہتی تھی۔ مما چڑیا جان گئی تھی کہ اب سمے آ گیا ہے وہ اپنے بیٹے کو بھوجن لانے کے لیے آنے والی مشکلات کے بارے میں جانکاری دے، تاکہ اسے احساس ہو، اسے معلوم ہو کہ بھوجن لانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ دوسرے دن مما چڑیا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ آج میرا بیٹا اپنی پسند سے بھوجن ڈھونڈ کر کھائے گا، میں بھی تو دیکھوں میرا بیٹا کیا پسند کرتا ہے۔ وہ ماں بیٹا ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے زمین پر دانا تھا۔ مما وہ دیکھیں، سامنے مکئی کے نرم نرم دانے ہیں، مما میں مکئی کھاؤں گا۔ بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ، انتظار کرو، مجھے لگ رہا ہے یہ دانا کسی شکاری نے بخیر رکھا ہے۔ مما چڑیا ابھی بات ہی کر رہی تھی کہ ایک بلبل قسمت کی ماری وہاں آ کر مکئی کا دانا کھانے لگتی ہے۔ وہاں تو سچ میں شکاری نے جال لگا رکھا تھا۔ بلبل جال میں پھنس جاتی ہے۔ مما چڑیا اپنے بیٹے کو لے کر جلدی سے وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ وہ ماں بیٹا بہت تیز اڑتے ہیں، وہ بہت دور جا کر رکتے ہیں۔ مما وہاں تو خطرہ تھا، بہت خطرہ تھا وہاں۔ ہاں بیٹا، جہاں آسانی سے دانا ملے اور جہاں زیادہ دانا ہو وہاں خطرہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ماں بیٹا ایک چھوٹے سے کھیت میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک بڑی بڑی آنکھوں والا کوا آ جاتا ہے۔ بورا نام ہے میرا، یہ کھیت میرا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ تیرے ساتھ ساتھ تیرے اس بچے کو کچا ہی کھا جاؤں گا چڑیا۔ کوے جی، ہم ماں بیٹا یہاں دانا ڈھونڈنے آئے ہیں۔ ایک بار کہا نا، بورے کوے سے پنگا نہیں لینے کا، جاؤ یہاں سے۔ وہ ماں بیٹا وہاں سے اڑ جاتے ہیں۔ اڑتے اڑتے وہ کسان کے کھیت کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کسان کھیت میں نہیں تھا۔ وہ ماں بیٹا ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مما کیا ہمیں یہاں سے دانا ملے گا؟ مما میں بہت تھک گیا ہوں۔ ملے گا، ضرور ملے گا بیٹا، اگر اس جگہ سے نہ ملا تو کسی دوسری جگہ سے ملے گا، مگر جو بھی حالات ہو
हमें दाना तो लेकर ही घर जाना है। मम्मा चिड़िया की नज़र थोड़ी दूर एक शरारती इंसानी बच्चे पर जाती है जो उसके बेटे को पत्थर मारने वाला था। कुकू जल्दी उड़ो बेटा, वो शरारती बच्चा पत्थर मारने वाला है। मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर उड़ जाती है और इंसानी बच्चे का फेंका हुआ पत्थर झाड़ियों में जाकर गिरता है। बच गया मम्मा, मैं बाल बाल बच गया। अगर आप मुझे ना बताती तो आज मेरा तो काम हो गया था। फिर वो माँ बेटा एक चावल के खेत में जाते हैं, मगर थोड़ी ही दूर इंसान बंदूक लिए बैठा था। वो वहाँ से भी उड़ते हैं। हवा के साथ आसमान पर बादल आ जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मौसम तो चंद लम्हों में ही बदल गया था। माँ चिड़िया अपने बेटे को लेकर एक पेड़ की खोखर में छुप जाती है। मम्मा बारिश कब रुकेगी? कुकू बेटा अभी तो बारिश शुरू हुई है, कभी कभी तो हमें इस बारिश के रुकने का पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर दाना मिलता है। हम सुबह से उड़ रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। मम्मा क्या भोजन की खोज इतना मुश्किल काम है? हाँ मेरे बेटे, मेहनत और ईमानदारी से दाना कमाना इतना ही मुश्किल है और चोरी करना आसान होता है, मगर चोरी करने वाले का अंत हमेशा बुरा ही होता है। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। अब तो अंधेरा भरने लगा था। कुकू को अब ठंड भी लगने लगी थी। कुकू बेटा चलें, बारिश रुक गई है। अब हमें सूरज की रोशनी जाने से पहले पहले दाना ढूंढना होगा। वो फिर से उड़ते हैं और फिर आखिर उन्हें नदी के पास चने का एक पौधा मिल जाता है। कुकू खुशी से शोर मचाता है। मम्मा मम्मा चने का पौधा, मम्मा हमें भोजन मिल गया। मम्मा चिड़िया उस पौधे से चने का दाना लेती है और एक चने का दाना उसका बेटा तोड़ लेता है और फिर वो माँ बेटा अपने घर की तरफ उड़ते हैं। घर जाकर मम्मा चिड़िया सूखी घास से अपने बेटे के पंख सुखाती है और रसोई से एक खाली प्लेट लाकर रखती है। मम्मा चिड़िया अपना दाना उस प्लेट में रखती है। कुकू भी अपना दाना उस प्लेट में रख देता है, मगर आज कुकू की आंखों में आंसू थे। कुकू बेटा क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? मम्मा मुझे माफ कर दें, आज मुझे एहसास हुआ है आप किन मुश्किलात से गुजरकर मेरे लिए दाना लाती हैं और मैं घर बैठे आपका लाया हुआ दाना ठुकरा देता हूँ। मम्मा आज तो मुझे ये चने का दाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ मेरे बेटे, मैं इसीलिए तो आपको अपने साथ लेकर गई थी ताकि आपको मालूम हो सके दाना लाना कितना मुश्किल है। आज आपने मेहनत की है और मेहनत से मिलने वाला चने का दाना भी आपको मीठे फल से ज़्यादा स्वाद देगा। सॉरी मम्मा, आज के बाद आप जो भी लाएंगी मैं वो खुशी खुशी खा लूँगा। तो फिर चने का दाना खाएं। फिर वो माँ बेटा चने का दाना खा लेते हैं और कुकू अपनी मम्मा के गले लगकर सो जाता है। आज तो थकन के कारण वो लेटते ही सो जाता है। माँ चिड़िया अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा आप हर रोज मीठा फल मुन्नी बहन को दे देती हैं और मुझे रोज सूखा दाना देती हैं। जग्गू बेटा, बहन छोटी है ना, इसलिए वो अभी दाना नहीं खा सकती। जब बहन बड़ी हो जाएगी तो मैं आपको और आपकी बहन को आधा आधा फल दे दिया करूँगी। मेरी मम्मा मीठा फल मुझे ही देंगी और तुम खाओगे सूखा दाना। जग्गू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। नदी पर जग्गू कौवे को उसका दोस्त चिड़िया का बेटा कुकू मिलता है। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर एक अच्छी चीज मेरी बहन को देती हैं और मुझे सूखा दाना दे देती हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? मैं समझा मेरी मम्मा ही ऐसा करती हैं। हाँ दोस्त, मम्मा गुड़िया के लिए रोज मीठा फल लाती हैं और मुझे दाना ही देती हैं, खिलौना भी गुड़िया के लिए। और गुड़िया हर रोज मम्मा के साथ सोती हैं और मुझे अलग घोंसले में सुला देती है मम्मा। गोरी बहन, क्या करूं? मेरा कुकू है कि समझता ही नहीं, हर समय अपनी छोटी बहन से चिढ़ता रहता है। चिड़िया क्या बताऊं, मेरा जग्गू भी ऐसे ही करता है, कभी रात को सोने पर लड़ाई और कभी भोजन पर।
आप चिंता ना करें, वो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं। वो समझते हैं कि उनकी मम्मा उनसे प्यार नहीं करती। जैसे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे वो। हरियाली, मेरा कुकू तो गुड़िया को मारने तक जाता है। कल तो उसने चम्मच गुड़िया के दे मारा था। कुकू और जग्गू की मम्मा बैठी ऐसे बातें कर रही थीं। और दूसरी तरफ जग्गू और कुकू बैठे एक दूसरे से अपनी बहनों को बुरा भला बोल रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन जग्गू कौवा कुकू से कहता है, यार कुकू, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारी मम्मा सिर्फ हमसे ही प्यार करेंगी। वो क्या उपाय सोचा है जग्गू दोस्त? हम ऐसा करते हैं, हम अपनी बहनों को काले जंगल में छोड़ आते हैं। ना वो होंगी और ना हमारी मम्मा उनसे ज्यादा प्यार करेंगी। बात तो ठीक है, कल तुम अपनी बहन को ले आना और मैं अपनी बहन को, फिर हम दोनों उन्हें काले जंगल में छोड़ आएंगे। ऐसे वो दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। लो मेरी गुड़िया, आप ये अनार का रस पी लो। कुकू बैठा अपनी बहन को घूर रहा था। मम्मा, कुकू भाई मुझे घूर घूर कर देख रहा है। आप ये अनार का जूस कुकू भाई को दे दें। चुप कर जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। कुकू बेटा, अपनी बहन से प्यार किया करो। तुम नहीं जानते, बहनें अपने भाइयों पर जान देती हैं। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। मैं गुड़िया से कभी प्यार नहीं करूँगा। ये हर रोज रात को आपके साथ सोती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया भोजन लेने जाने की तैयारी करती है। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा, मेरे लिए मीठा फल जरूर लाना। मम्मा चिड़िया चली जाती है। गुड़िया, जग्गू अपनी बहन को साथ लेकर तितलियां देखने जा रहा है। क्या तुम भी जाओगी तितलियां देखने? मगर मम्मा वापस आकर डांटेंगी। मम्मा के आने से पहले पहले हम लौट आएंगे। जग्गू और मुन्नी भी तो जा रहे हैं। कुकू की बहन अपने भाई की बात मान लेती है और कुकू के साथ चली जाती है। जग्गू भी किसी न किसी तरह अपनी बहन मुन्नी को साथ ले आया था। कुकू चले? हाँ हाँ जग्गू, गुड़िया भी तितलियां देखना चाहती है। फिर वो दोनों दोस्त अपनी अपनी बहनों को साथ लेकर काले जंगल की तरफ चल देते हैं। काला जंगल बहुत दूर था, इसलिए वो सब बहुत तेज उड़ते हैं और काले जंगल में पहुंच जाते हैं। कुकू भाई, कहाँ है तितलियां? यहाँ तो कोई तितली नहीं है। जग्गू भाई, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? यहाँ तो तितलियां नहीं है। हम दोनों दोस्त का ये प्लान था। तुम रहोगी अब इस काले जंगल में और हम सोएंगे मम्मा के साथ। और गुड़िया खाएगी यहाँ सूखा दाना और मैं खाऊंगा मीठा फल। ऐसा कहते हुए जग्गू और कुकू जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। कुकू, कुकू भैया, रुको रुको, ऐसा ना करो। आप हमें यहाँ छोड़कर ना जाओ। कुकू भैया। मुन्नी और गुड़िया भी अपने भाइयों के पीछे उड़ती हैं, लेकिन जग्गू और कुकू इधर उधर उड़ते हुए घने जंगल में छुप जाते हैं और उनसे आंख चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। मुन्नी और गुड़िया एक सूखे हुए पेड़ पर बैठकर रोने लग जाती हैं। भाई ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? भाई गंदा है, वो हमें मरने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। मुन्नी, हमारे भाई हमसे नफरत करते हैं। शाम को मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है और कुकू भी अपनी मम्मा के आने से पहले पहले घर पहुँच गया था। कुकू बेटा, बहन कहाँ है? मम्मा, मैं तो सो गया था। जब मैं उठा तो गुड़िया ना जाने कहाँ चली गई। हाय, मैं मर गई। मेरी गुड़िया कहाँ जा सकती है? परेशान होकर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। उधर गौरी भी अपनी बेटी को घर में ना देखकर परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, सच सच बताओ, आपकी बहन कहाँ है? मैं सच कह रहा हूँ मम्मा, मुन्नी नदी पर पानी पीने गई थी, मुझे और कुछ नहीं पता। गौरी कौवी भी अपनी बेटी को ढूंढने निकलती है। रास्ते में उसे चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, मेरी गुड़िया न जाने कहाँ चली गई है। चिड़िया, मेरी बेटी भी घर में नहीं है, हो सकता है वो दोनों कहीं घूमने चली गई हो। मगर गुड़िया तो अकेली कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। फिर चिड़िया और गौरी कौवी अपनी बेटियों को पूरे जंगल में ढूंढती हैं और थक हार कर अपने अपने घरों को चली जाती हैं।
आज रात कुकू अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। उसकी मम्मा रो रही थी, मगर कुकू खुश था। वो सोच रहा था कि अब गुड़िया के हिस्से का प्यार भी उसकी मम्मा उससे करेगी। जग्गू भी अपनी मम्मा के साथ सोया हुआ था। मुन्नी और गुड़िया एक सूखे पेड़ के तने में छुपी बैठी थी। गुड़िया, अगर आज की रात हम आहिस्ता बोलो मुन्नी, अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वो हमें खा जाएगा। गुड़िया, सुबह तक अगर हम बच गए तो हम किसी न किसी तरह घर वापस पहुँच जाएंगी। मुन्नी, हमारे भाई हमें यहाँ धोखे से छोड़ कर गए हैं, लेकिन हमारे भाई ये नहीं जानते कि हम उनसे कितना प्यार करती हैं। मुन्नी, अगर हम घर वापस पहुँच गए तो मम्मा को नहीं बताएंगी कि कुकू और जग्गू हमें यहाँ छोड़ कर गए थे। ऐसे भाई हमारी मम्मा से पिटेंगे। हाँ गुड़िया, हम कहेंगे कि हम तितलियाँ देखने यहाँ आए। जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह सवेरे मिठू तोता उस दिशा में आता है। वो गुड़िया और मुन्नी को देखकर वहाँ आ जाता है। तुम दोनों यहाँ हो और तुम्हारी माएँ रो रो कर मर गई हैं। चलो घर चलो। तोता उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। गुड़िया को चिड़िया के घर और मुन्नी को गोरी कव्वी के घर छोड़कर तोता चला जाता है। गुड़िया बेटी, भला ऐसे भी करता है कोई? आप मुझे बताए बिना कहाँ चली गई थी? कुकू पूरी तरह डरा हुआ था कि अब गुड़िया सच बताएगी और उसकी मम्मा उसे बहुत मारेंगी। भाई कुकू, चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। गुड़िया अपने भाई कुकू के कान में ऐसे कहती है। मम्मा, मैं और मुन्नी तितलियाँ देखने काले जंगल गई थी कि रास्ता भूल गई। सॉरी मम्मा, मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। ये सुनकर कुकू अपनी बहन को गले से लगा लेता है। मम्मा, मेरी बहन मिल गई। मैं फिर कभी दोबारा अपनी बहन को खोने नहीं दूंगा। हमेशा अपनी बहन के साथ रहूंगा। उधर मुन्नी ने भी जग्गू को बचा लिया था। मुन्नी बेटी, फिर अगर तितलियाँ देखने जाना हुआ तो बड़े भाई को साथ लेकर जाना। भाई जग्गू, ले जाओगे ना मुझे? बताओ। हाँ मुन्नी, जरूर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ऐसे मुन्नी और गुड़िया अपने अपने भाई की गलती पर पर्दा डाल देती हैं और फिर उनके भाई भी अपनी बहनों से प्यार करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।